Hello students, welcome to CAT preparation by textbook. This is another session on formula book, and today we are going to discuss the formulas, the major formulas in time, speed and distance, and the agenda would be to take care of all the formulas that are relevant from management examinations point of view. Regarding their applications, guys, let's keep this video crisp and short, somewhere around 20 minutes, maybe a minute here and there. आपको अगर डिटेल में देखना है with examples, enough number of questions, so you can go and watch scratch batch. Therein I have covered the entire time, speed and distance formula, theory, and enough number of questions, PYQs, everything. So I would recommend that. ये क्विक रिविजन के लिए है. If you are missing something, तो you can this video can be handy. You can watch it quickly and yes, good to go. Before we start today's session, guys, बहुत important notification है. Now since examination is 5 months down the line, if you are looking for free resources, those who are not aware of, most of you are aware of now, but those who are not aware of, daily at 7 p.m. I conduct class for CAT QA over the channel CAT Preparation by Textbook. बहुत important सेशन होगा आपके लिए. 7 p.m. का कैलेंडर ब्लॉक कर लो. डेली एट 7 p.m. वी डू टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, रिविजन, वी डू लाइव मॉक एनालिसिस भी करते हैं मंडे ऑन मंडे. और आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ मैं. डाउट्स सॉल्विंग सेशंस होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिस्कशंस होते हैं, टिप एंड ट्रिक्स में देता हूँ आपको. लाइव एट 7 p.m. 40-45 मिनट्स का सेशन होता है, हार्डली एन आवर. तो लेट्स मीट ऑन डेली बेसिस. लेट्स बी कंसिस्टेंट ऑन दिस. आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, आई एम नॉट सेइंग दिस इज फ्री, दिस इज कम्प्लीटली फ्री. आप आओ, लेट्स टॉक and you will be benefited. Okay, let's come to the time, speed and distance. You can always expect at least one question from time, speed and distance, right? Just a sec. देखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो इंटायर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज स्टेशनरी और इंडिविजुअल, सेकंड इज रिलेटिव. व्हेन आई से स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रुका हुआ क्या? नो. स्टेशनरी मतलब वन बॉडी इज इन मोशन, अदर वन इज स्टेशनरी. एक ही है. या तो एक क्वेश्चन में एक बॉडी होगी, और देयर वुड बी टू बॉडीज, बट वन ऑफ द बॉडीज वुड बी एट रेस्ट थ्रू आउट द क्वेश्चन. रिलेटिव क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू बॉडीज आर इन मोशन, तो वो सारे क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग रिलेटिव में. We'll start with stationary part. Stationary part में the governing equation is distance is equal to speed into time. सब कुछ यही है बेटा. Everything is this formula. Time, speed and distance में everything is this formula. Governing equation, most important. It looks simple, but its applications is huge. You need to understand the applications. So distance is equal to speed into time. Vice versa, speed is equal to distance by time, and time is equal to distance by speed. So these are three major formulas you need to be aware of. I hope you are aware of it already, right? Applications, scratch patch. Next, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो क्वेश्चन में इनका यूनिट्स क्या होता है? डिस्टेंस का, स्पीड का, टाइम का. लाइक डिस्टेंस आपको जनरली दिखता है सर किलोमीटर में दिखता है या मीटर में दिखता है जनरली. टाइम जनरली आपको सेकेंड्स में दिखता है एंड मिनट्स में दिखता है, एंड समटाइम्स इन आवर्स. ठीक है, सेकेंड, मिनट या आवर. टाइम में तो दे डोंट प्ले मच, बट डिस्टेंस में ना गाइस, they may or may not give you these SI units, मीटर, किलोमीटर. इनफैक्ट सेंटीमीटर से किलोमीटर के बीच में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, वो किसी भी यूनिट में डिस्टेंस दे सकते हैं. सो इन द क्वेश्चन दे कुड मेंशन दैट डिस्टेंस इज 70 हेक्टोमीटर, and this hectometer is a unit which lies between centimeter and kilometer. तो कहीं ना कहीं आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर तक जो भी ऐसे यूनिट्स है ना, वो याद होने चाहिए. उसके ऊपर उसके नीचे दे विल गिव यू फॉर द रेफरेंस. बट अगर उन्होंने क्वेश्चन में सेंटीमीटर से किलोमीटर के बीच का कोई यूनिट दिया, दे माइट नॉट गिव यू द यूनिट कन्वर्जन. तो आपको पता होना चाहिए. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्टेंस का यूनिट कन्वर्जन राइट फ्रॉम मिलीमीटर टू किलोमीटर. ये कैसे वर्क करता है? देखो, दिस इज मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर. ओके,
अब सपोज सपोज उन्होंने दे रखा है आपको 1 हेक्टोमीटर और इसको आपको कन्वर्ट करना है समथिंग समथिंग मीटर्स में। हाउ मेनी मीटर्स इज दिस? तो अब देखो, आप हेक्टोमीटर से मीटर में आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, राइट? तो नीचे आने में क्या करना है? चेक दिस एरो, मल्टीप्लाई करना है 10 से। सो मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10। हेक्टोमीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से मीटर। So it is nothing but 10 into 10, 100. 10 into 10, 100 मीटर। ओके, सिमिलरली अगर आपको सेंटीमीटर तक आना था, अगर आपको हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो हेक्टोमीटर से विल कम टू डेकामीटर, डेकामीटर से विल कम टू मीटर, मीटर से विल कम टू डेसीमीटर, एंड डेसीमीटर से विल कम टू डेकामीटर, डेसीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में आना था, ठीक है। हेक्टोमीटर को यू हैव टू कन्वर्ट हेक्टो, 1 हेक्टो इनटू सेंटीमीटर, इनटू सेंटीमीटर। तो आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4। सो दिस इज 10 raised to the power 4 सेंटीमीटर, और 1, 2, 3, 4। okay, so 1 hectometer is, so you can convert any unit into any unit by using this। अगर छोटे से को बड़े में कन्वर्ट करना है, लेट्स से उन्होंने दे रखा है डेसीमीटर और आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 डेसीमीटर, और आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड। अब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, राइट? आपको करना पड़ेगा डिवाइड। अगर किलोमीटर तक जाना है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। So this is nothing but 1 upon 10 raised to the power 4 kilometers. So you can use this distance to convert into desirable units. डिजायरेबल क्या है? किलोमीटर है, मीटर है। क्वेश्चन में कोई और यूनिट है तो वी विल कन्वर्ट दैट इनटू किलोमीटर एंड मीटर यूजिंग दिस यूनिट कन्वर्जन चार्ट। टाइम का इट्स वेरी सिंपल, 1 hour is 60 minutes, 1 minute is 60 seconds। इसके ऊपर या इसके नीचे हुआ नैनो, गीगा, पीका, हेक्सा, तो दे विल गिव यू द रेफरेंस। इस केस में भी अगर किलोमीटर के ऊपर जा रहे हैं, मेगा, गीगा में जा रहे हैं, तो दे विल गिव यू द रेफरेंस। नैनो, पीको में जा रहे हैं तो दे विल गिव यू द रेफरेंस। नीचे भी जा रहे हैं तो भी दे विल गिव यू द रेफरेंस। बट ये आपको पता होना चाहिए। सॉर्टेड? चलो, स्पीड का कन्वर्जन कैसा है? स्पीड स्टैंडर्ड कन्वर्जन इज दिस। Now we know that we can convert any unit into any unit in distance and time। बट एक जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है ना, वो ये है कि सपोज इफ यू हैव 10 मीटर पर सेकंड एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई इट बाय 18/5। सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 18/5 एंड दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर। वाइस वर्सा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। सपोज यू हैव 90 किलोमीटर पर आवर एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, तो आपको सिंपली क्या करना है बेटा? 90 इंटू 5/18, दिस इज 25 मीटर पर सेकंड। सॉर्टेड? ओके, अच्छा ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, कैसा गिवन है सर? क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स से 1 डेकामीटर अपॉन अपॉन सेकंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा? डेकामीटर पर अपॉन सेकंड इज नॉट अ स्टैंडर्ड वन, मतलब इट इज अ राइट वन बट नॉट मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले डेका को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी सेकंड है। विल यूज दिस चार्ट। ओके, अगर आपको डेकामीटर को से मीटर में कन्वर्ट करना है, सो you need to multiply it by 10। So I can write this as 10 meter per second, and now 10 meter per second is nothing but 36 kilometer per hour। Sorted? इस तरीके से you can use the chart and do any speed into any speed or any distance into any distance। I hope I'm clear with this। It's very important। एग्जाम में if they are giving you the units between centimeter and kilometer, तो उसके बीच का if the unit lies between centimeter and kilometer या millimeter and kilometer, तो they might not give you the reference।
डेकामीटर दे दिया तो आपको पता होना चाहिए, दैट वुड बी द बेसिक एक्सपेक्टेशन। यूनिट कन्वर्शन के बाद आता है बेटा एवरेज स्पीड। लेट्स अंडरस्टैंड एवरेज स्पीड विथ अ क्वेश्चन। So question says that if you are going from Pune to Mumbai via Lonavala and the average speed from Pune to Lonavala is 40 km per hour and Lonavala to Mumbai is 60 km per hour, what would be the average speed for the entire journey? Take 10 seconds and answer this question. Take 10 seconds and answer this question. सर ये तो बहुत आसान है। सर स्पीड एवरेज क्या हो जाएगा फॉर द एंटायर जर्नी? मुझे पता है सर, 40 प्लस 60/2 50 किलोमीटर पर आवर है सर। Now this would be a wrong answer. क्यों? 50 is not the answer. 50 ऑप्शन में रहेगा बट दैट इज नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या स्पीड एवरेज का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ऐसा कुछ? देखो एवरेज स्पीड का केवल दो फार्मूला है, एक फार्मूला एक करोलरी। व्हाट इज द करोलरी? करोलरी इज समथिंग व्हिच इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, फॉर्मूला इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। करोलरी क्या है? अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। करोलरी लुक्स लाइक फॉर्मूला, करोलरी लुक्स लाइक फॉर्मूला, बट होता क्या है कि वो फॉर्मूला जैसा दिखता है बट वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है, उसको अपने हिसाब से कंडीशन मिलेगा तो एप्लीकेबल होगा। एवरेज स्पीड निकालने का देयर आर टू फॉर्मूलाज, वन इज फॉर्मूला, वन इज कोरोलरी। देखो एवरेज स्पीड निकालने का दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको टोटल डिस्टेंस पता है, वेरी गुड। टोटल टाइम पता है, वेरी गुड। यूज करो फॉर्मूला, आंसर निकालो। इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस आपको पता है? नहीं। टोटल टाइम पता है? नहीं, कुछ नहीं पता है। निकाल सकते हैं क्या? नो सर, क्योंकि एवरेज स्पीड गिवन है, आई कैनॉट फाइंड इट आउट। So first method is not applicable. Second is this formula, corollary, 2s1 s2 upon s1 plus s2। सर अगर इसको यूज करें तो, अगर इसको यूज करें सर तो सर 2 s1 s2 upon s1 plus s2, my s1 would be 40, so 2 times 40 into 60 upon 40 plus 60, this gives me 48 किलोमीटर पर आवर। ये भी ऑप्शन में नहीं है या है सर? ये हो गया ना आंसर सर? नो, this is also not the answer. Why? Because this is not always applicable. This is applicable if the journey is completed in two parts and length of both of the parts are equal. ये x है तो ये भी x है। अगर जर्नी दो पार्ट में completed है and length of both of the parts are equal, then and then only this formula is applicable. Okay. First part में s1 is the speed, second part में s2 is the speed. You can find out the overall average speed using this formula if the journey is completed in two parts and length of both of the parts are equal, which is not the case here. Question में there is no data given that suggests कि पुणे से लोनावला and लोनावला से मुंबई तक का distance is same. It is not given. तो ये भी truly applicable नहीं है। हाँ, अगर ये equal given होता, ये distance equal है, then 48 would have been the answer, but under given circumstance ये equal given नहीं है, so this is also not the answer. Sorted? अच्छा, ऐसा ही कुछ मॉडिफिकेशन इसके लिए भी है। इफ द जर्नी इज कंप्लीटेड इन 3 पार्ट्स एंड लेंथ ऑफ ऑल द पार्ट्स आर इक्वल, फर्स्ट पार्ट में s1 इज द एवरेज स्पीड, सेकंड पार्ट में s2 इज द एवरेज स्पीड, थर्ड पार्ट में s3 इज द एवरेज स्पीड। इसके लिए भी है। इसके लिए क्या है बेटा? 3 टाइम्स s1 s2 s3 s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s1 s3 if the journey is completed in 3 parts and length of all the 3 parts are equal. Similarly for 4 parts we have, you can modify it accordingly, 4 s1 s1 s2 s3 upon s1 s2 s3 s2 s3 s4 s1 s2 s4 and चौथा क्या हो जाएगा? s1 s3 एक एक मिस करते जाना है। s1 s2 s3 है, s4 मिस किया, फिर s1 s2 s4 है, s3 मिस किया, फिर s1 s3 s4 है, s2 मिस किया, s2 s3 s4 है, s1 मिस किया। बट उतना जरूरत नहीं है वो, इनफैक्ट उससे फास्ट आप यूं ही निकाल लोगे। ठीक है,
चलो, so this was general speed, and now relationship between distance speed, distance time and speed time. So it comes from the governing equation. हमें क्या पता है? Distance is equal to speed into time. So distance is directly proportional to speed and distance is directly proportional to time, which means d1 by d2 would be equal to s1 by s2. d बढ़ेगा, s बढ़ेगा, d घटेगा, s घटेगा. Similarly, distance is also directly proportional to time. So d1 by d2 is equal to t1 by t2. ये थोड़ा सा ना प्रोपोर्शनैलिटी में भी आपने सीखा होगा. मैंने कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनैलिटी में का जो फॉर्मूला बुक दिया था आपको, उसमें टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में डायरेक्ट और इनवर्स था. ये कॉन्सेप्ट वहां से आता है. स्पीड एंड टाइम दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, हेंस दीज आर द गवर्निंग इक्वेशंस. बट इफ यू लुक अबाउट स्पीड एंड टाइम का रिलेशनशिप, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. If distance is constant, speed is inversely proportional to time, which means s1 by s2 would be equal to t2 by t1. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है. Sorted? चलो, अब क्विकली जंप कर जाते हैं. हमारा जो फॉर्मूला है फॉर रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड क्या है? बहुत आसान है. गवर्निंग इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है. डिस्टेंस रिलेटिव इज इक्वल टू स्पीड रिलेटिव इनटू टाइम रिलेटिव. ओके, बहुत आसान सा इक्वेशन है. इसी इक्वेशन के ऊपर ना, एक छोटे से इक्वेशन के ऊपर पुलिस थीफ वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, एस्केलेटर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं. देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन these two types of questions and these two types of questions. बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है. इनमें एक थोड़ा सा फॉर्मूला सेम यूज होता है. डिस्टेंस रिलेटिव इज इक्वल टू स्पीड रिलेटिव इनटू टाइम रिलेटिव. डिस्टेंस रिलेटिव कैलकुलेट करने का भी तरीका सब में सेम है, बट स्पीड रिलेटिव कैलकुलेट करने का तरीका ना इनके लिए अलग है और इनके लिए अलग है. फॉर पुलिस थीफ एंड ट्रेन्स टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग है एंड इनके लिए अलग है. वो इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है. वो देखते हैं आगे. तो इनमें कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, उसके लिए आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ ट्रेन्स का. देखो बेटा, ट्रेन्स में अगेन द गवर्निंग इक्वेशन इज डिस्टेंस रिलेटिव इज इक्वल टू स्पीड रिलेटिव इनटू टाइम. व्हाट इज डिस्टेंस रिलेटिव? डिस्टेंस रिलेटिव इज दैट इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. दो बॉडीज कुछ भी हो सकती है. दो ट्रेन हो सकता है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, एक ट्रेन एक चिड़िया हो सकती है, दो चिड़िया हो सकती है, दो कार हो सकती है, एक ट्रेन एक कार हो सकती है, एक ट्रेन और एक आदमी दौड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है. दो बॉडीज, द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन, जब दोनों बॉडीज मोशन में आती है एट टाइम इज इक्वल टू 0, या जिस भी मोमेंट पे द बोथ ऑफ द बॉडीज कम इन मोशन, जब तक एक बॉडी मोशन में है इट्स अ केस ऑफ स्टेशनरी. जब दूसरा भी मोशन में आया, द मोमेंट द सेकेंड बॉडी कम्स इन मोशन, अगर क्वेश्चन के शुरू से मोशन में है, वेरी गुड. इफ नॉट, क्वेश्चन के बीच में मोशन में आता है, द मोमेंट एट विच द सेकेंड बॉडी कम्स इन मोशन, the initial distance, the initial gap between them is d relative. Okay. स्पीड रिलेटिव क्या है बेटा? देखो, स्पीड रिलेटिव है कि इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो कार है, दिस इज मूविंग द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर and this is moving at the speed of 500 kilometer per hour. When they will cross each other ना, आप तो 50 के स्पीड से जा रहे थे, आपकी स्पीड कुछ ज्यादा नहीं थी, तो आप इसको देख पाओगे क्या? वो नहीं देख पाओगे. क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा है ना, 500 है. इनफैक्ट जो रिलेटिव स्पीड है ना, दैट वुड बी एडिशन ऑफ दीज टू, 50 प्लस 500. या फिर इसको दूसरे अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और सामने से एक दूसरी कार आ रही है, उसकी भी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर. एंड नाउ यू नो हाउ 50 किलोमीटर पर आवर लुक्स लाइक. आपको समझ में आता है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कैसी है, बिकॉज यू आर सिटिंग इनटू इट. जब दूसरी कार आपको क्रॉस करती है, तो आपको क्या वो 50 की स्पीड से दिखती है क्या? नहीं, आपको लगता है कि आप जगह पे बैठे हो और वो कार तेज से निकल गई, राइट. आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे रहते हो, राइट. ट्रेन के कंपार्टमेंट में आप बैठे हो और चीजें भाग रही है पीछे, किस स्पीड से? जिस स्पीड से ट्रेन जा रहा है, राइट. तो आर दोस थिंग्स एक्चुअली रनिंग?
बाहर का जो पेड़ है, जो खेत है, क्या वो भाग रहा होता है खुद? नहीं, वो तो रेस्ट पे है। बट आपको क्या फील होता है कि आप रेस्ट पे हो एंड वो भाग रहा है, सो उसको स्पीड मिल जाती है क्या? यू आर सिटिंग इन द ट्रेन, यू आर सिटिंग इन द ट्रेन एंड द ट्रेन का स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर, एंड बाहर एक पेड़ है, पेड़ इज स्टिल 0 किलोमीटर पर आवर। बट आपको क्या फील होता है कि आप बैठे हो शांति से और पेड़ पीछे भाग रहा है, और पेड़ किस स्पीड से पीछे भाग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो 0 + 100, 100 की स्पीड से पेड़ भाग रहा है। तो स्पीड रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करता है? इफ द मोशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऐड कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन है। यहां दो बॉडीज पास आ रही है, यहां दो बॉडीज दूर जा रही है। ऐसे केस में यू ऐड द स्पीड्स। इफ द स्पीड इज इन सेम डायरेक्शन, अगर एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी भी ट्रेन इधर ही जा रही है, इसकी स्पीड है 100, इसकी स्पीड है 100, आप यहां बैठे हो, आपको लगेगा दूसरी ट्रेन खड़ी है, दोनों 100 की स्पीड से जा रहे हो ना, तो यू विल फील कि सेकंड वाली ट्रेन खड़ी है, बट बोथ ऑफ यू आर रनिंग एट स्पीड ऑफ 100। स्टिल यू विल फाइंड, अभी बाइक पे आप जाते हो ट्रिपल लोडिंग, राइट? आप बैठे रहते हो, आप, आपका दोस्त, उसके पीछे उसका दोस्त, एंड बगल में अगेन महिला आई स्कूटर पे, महिला, उसकी दोस्त, और उसकी दोस्त की दोस्त, और कुछ तो बातें हुई आपके इशारों इशारों में, राइट? तो आप क्या करते हो? उसकी स्कूटी से स्पीड मैच कर देते हो। अगर वो बच्ची 40 के स्पीड से चला रही है, तो आप भी 40 के स्पीड पे चलाते हो। तो क्या लगता है कि दोनों खड़े हैं? ऐसा तो नहीं लगता कि दोनों भाग रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा दोनों खड़े हैं और दोनों बातें कर रहे हैं आराम से, राइट? लेकिन ये सजेशन है कि जो महिला की स्कूटी के साथ आप स्पीड मैच कर रहे हो ना, 1 मिनट के बाद साइड में रुक के बात कर लो, क्योंकि महिला के हाथ में स्कूटर होना 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 इज वेरी रिस्की। ओके, वो महिला गिरेगी, तुम्हें गिराएगी और तुम्हें मार पड़ेगी अलग से, और मैं रहूंगा तो अलग से मारूंगा। सो इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? s1 - s2, s1 - s2। ओके, बट जब आप बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की बात करते हो ना, इसमें उल्टा हो जाता है। डिस्टेंस रिलेटिव तो सेम है, फॉर्मूला भी सेम यूज होगा, डिस्टेंस रिलेटिव इज इक्वल टू स्पीड रिलेटिव इनटू टाइम। डिस्टेंस रिलेटिव सेम है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। लेकिन लेकिन यहां पर दो कॉन्सेप्ट है, स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है? सपोज ये नदी है, नदी में स्ट्रीम, पानी का एक फ्लो होता है ना, वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेट्स से 10 की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, और आप उसकी उल्टी डायरेक्शन में बोट चला रहे हो, आप इधर बोट चला रहे हो, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है? ये है स्पीड ऑफ स्ट्रीम और ये है स्पीड ऑफ बोट। पानी आपको इधर धक्का दे रहा है और आप इधर आने की कोशिश कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप किधर जाओगे? कहीं भी नहीं जाओगे। पानी आपको 10 इधर फेंक रहा है, बट आप उधर से इधर आ रहे हो, तो कैंसिल आउट हो जाता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर स्पीड रिलेटिव अगर निकालना है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। ट्रेन में ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता था, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता था, पुलिस थीफ में ऐड होगा, बट बोट एंड स्ट्रीम एंड एस्केलेटर के केसेस में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वो माइनस होता है, और ऑपोजिट वाले केस को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। ऑपोजिट वाले केस को हम क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। सिमिलरली अगर आप बोट रो कर रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में, दिस इज स्पीड ऑफ बोट, और उसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से अचानक से वाटर भी फ्लो करने लगा, वाटर भी फ्लो करने लगा। अब आपको हेल्प हो जाएगी ना, आप ऑलरेडी 10 की स्पीड से जा रहे हो और वाटर आपको और धक्का दे रही है 10 की स्पीड से, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकालना है तो इट इज एडेड अप। दैट्स द मेजर डिफरेंस। इसको समझने के लिए यू नीड टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, फॉलो स्क्रैच बैच। आई एम शेयरिंग दिस अगेन एंड अगेन। स्क्रैच बैच में जाओ, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का सेशन निकालो, सॉल्व करो, पुलिस थीफ का सेशन निकालो, सॉल्व करो। अच्छे अच्छे एग्जांपल्स वहां गिवन है, पूरी की पूरी थ्योरी भी डिटेल में समझाई है। दिस इज फॉर्मूला बुक, तो बहुत क्रिस्प रखना पड़ता है ये, ठीक है? वन लास्ट थिंग,
गाइस सपोज ये दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट से शाहरुख खान ने चलना शुरू किया, बी पॉइंट से सलमान खान ने चलना शुरू किया, ठीक है। बी पॉइंट से सलमान खान या आमिर खान बोलते हैं, आमिर खान ने चलना शुरू किया। ओके, नाउ शाहरुख इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ S1 एंड आमिर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ S2। कहीं ना कहीं वो मिलेंगे बीच में, लेट्स से सी पॉइंट पे मिल गए। शाहरुख is moving in this direction with speed S1. Amir is moving in this direction with speed S2. Okay. And let's say शाहरुख को ये डिस्टेंस कवर करने में लगा T1 टाइम, ओके, या फिर TA टाइम, TS टाइम, टाइम टेकन बाय शाहरुख, और आमिर को CA मिलने के बाद डेस्टिनेशन पे आने में लगा TA टाइम। ओके, एंड इनके स्पीड को भी ना सफिक्स दे देते हैं उसी हिसाब से। SS स्पीड ऑफ शाहरुख, स्पीड ऑफ आमिर, this is the speed of Amir and this is the speed of Shahrukh. Okay, so concept क्या है कि उनके मीटिंग पॉइंट के बाद अगर उनको अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाने में TS और TA टाइम लगा है तो उनके स्पीड का जो रेशियो होगा स्पीड ऑफ शाहरुख अपॉन स्पीड ऑफ आमिर वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स ऑफ टाइम, टाइम ऑफ आमिर अपॉन टाइम ऑफ शाहरुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉट फेवरेट कैट का। और ये मीटिंग पॉइंट के बाद का केस है बेटा, आफ्टर मीटिंग पॉइंट, आफ्टर मीटिंग पॉइंट। ओके, इसको अगर S1 S2 के टर्म्स में लिखे तो आफ्टर मीटिंग S1 बाई S2 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ T2 बाई T1। ठीक है, नोट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे 24 में भी क्वेश्चन आया था, 23 में भी क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, सो दीज आर द फॉर्मूलाज यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। आधा घंटा लग गया, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। इस पे प्रैक्टिस करना है ऑब्वियसली। प्रैक्टिस के लिए आई हैव टोल्ड यू वन रिसोर्स, स्क्रैच पैच फॉलो करो। ओके, if you have any queries regarding preparation of CAT 2025 और OMETS 2025, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, भर दो। माय टीम विल रीच यू आउट एंड आपकी जो भी क्वेरीज है दे विल सॉर्ट इट आउट। ओके, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, स्कैन करके इसको स्कैन करके यू कैन ज्वाइन माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। वहां पर मैं बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज के लिंक देता हूँ आपको एंड नोट्स देता हूँ आपको। फ्री क्लासेस जो मैं कंडक्ट करता हूँ उसके भी लिंक्स आपको देता हूँ। कंप्लीटली फ्री प्रिपेयर करना है, यू कैन ज्वाइन दिस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। आपको बातें करनी है, कुछ पूछना है, you can connect with me over this telegram channel. Okay guys, I hope you enjoyed the session, you liked the session. Enjoyment to chhod do, this session is important. I hope you have learned something from it. See you again in the next session, and once again do not forget to join me on my daily 7 PM live. जम के बातें करेंगे, जम के सीखेंगे। These sessions are really very helpful. Till then, have a great day ahead. मिलते हैं वापस बेटा। This is Ashish Kumar signing off from this particular session. Tata, bye bye.